Assalamu alaikum, my dear students of class 8th. Dear students, we have completed the chapter Force and Pressure, and today we are going to take up a new chapter from your physics portion, and that is Some Natural Phenomena. I'm going to write here Some Natural Phenomena is a new chapter that is going to be discussed now. Some Natural Phenomena. Okay, beta. And as far as your syllabus is concerned, there are two topics which include your chapter Some Natural Phenomena. We have to discuss about number first, concept of lightning, what lightning is actually. Okay, beta. Concept of lightning, the topics included in your chapter. First topic is concept of lightning, and number second we have to discuss about earthquake. Earthquake. Okay. We have to discuss them broadly, and there are only two topics which are included in your chapter Some Natural Phenomena. It will not take more than 6 or 7 lectures to complete your chapter. Okay बेटा, बहुत ईजी है. एंड आपके सिलेबस में नेचुरल फिनोमिनास कौन से फिनोमिनास हैं? दोज आर डिजास्टर्स नेचुरल फिनोमिनास. ओके, one is the lightning and second is earthquake. We had to discuss about the lightning concept. Okay, and second we had to discuss about the earthquake. अर्थक्वेक में आपके डूज एंड डोंट्स भी पढ़ने हैं हमने, एंड ऑल्सो इलेक्ट्रोस्कोप वो भी हमने स्टडी करना है, व्हाट इज़ दैट, एंड देर आर दीज आर सम टॉपिक्स विच वी हैव टू डिस्कस इन योर चैप्टर सम नेचुरल फिनोमिना. लेट्स गो फॉर द फर्स्ट टॉपिक, that is the concept of lightning. We'll take up the new topic, first topic of your chapter, that is the concept of lightning. Okay beta. As far as the previous age are concerned, जो आपके एज गुजरे हैं, lightning was considered as the wrath of God. Lightning was considered as the wrath of God. Wrath मतलब को गोबर deep anger. It was the classical concept जो लोगों में पहले पाया जाता था कि ये लाइटनिंग एक्चुअली है क्या. इट्स एक्चुअली द रैथ ऑफ गॉड, डीप एंगर ऑफ गॉड. ओके, जब गॉड मतलब अल्लाह ये आसान, जब अल्लाह ताला डीप एंगर मूड में है, वी हैव टू नॉट से दिस एज वी आर मुस्लिम्स, and it was just a myth. Okay beta. And what was the myth was it's the wrath of God. It was considered as a wrath of God. Don't go this, it's just a myth, and it was an illusion that in 1752 it was Benjamin Franklin. Okay beta, it was Benjamin Franklin who established that, who developed that lightning is nothing. It is nothing. It's not a myth. It's nothing but an electric discharge. Okay बेटा. So उसने इस वाले कॉन्सेप्ट wrath of God वाले कॉन्सेप्ट को क्या किया? He just removed the concept of wrath of God. That means lightning was considered as the wrath of God. He just make the things quite topsy turvy. उसने कहा कि ये जो lightning है, lightning is actually as a result of electric discharge. Lightning जो है, lightning is just as the result of electric discharge. जैसे आपको एम्बर में स्पार्क प्रोड्यूस होता है, ओके, स्पार्किंग ऑफ एम्बर, वैसे ही लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट है. वहाँ पे कोई wrath of God नहीं है. Okay, but in 1752, so we say before 1752 people used to say this lightning was a concept, was just a wrath of God, but it was proved wrong. By whom? By Benjamin Franklin in 1752, and he established that lightning जो का concept जो है, it's nothing but an but as a result of electric discharge, but it's the result of electric discharge rather. Okay, so lightning है क्या actually? We have to read out, we will study out the concept of lightning. Okay बेटा. And आपको पता है कि जो lightning का concept है, lightning कब होती है? When it happens when there is a rainy season or when there is a cloudy season. Okay बेटा, या जब clouds will be hovering over the sky, or when there is the rain that's falling from the
sky. As a result of it we see the lightning is happening. Okay, कैसे होता है ये? आपको पता है कि इवेपोरेशन की वजह से, आई विल नॉट गो टू द साइकिल्स इवेपोरेशन कैसे होती है वो, आई विल जस्ट गो डायरेक्टली इनटू द कॉन्सेप्ट। इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, एयर गेट्स फ्लोन, लेट अस सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके बेटा, लेट अस सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ एंड अब इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, एयर गेट्स फ्लोन, okay, fluid gets flown to the upper portion, as you go higher the cooler it is. Okay, and in the upper atmosphere क्या होता है, due to this cooling atmosphere, this air, the water vapors, that evaporated from the surface of earth, they get condensed here. Okay, when they get condensed here, and there happens to be the formation of water droplets as a result of the condensation of the water vapors, water droplets and ice crystals. Okay beta, when there is the result of the formation of water droplets and ice crystals, that means millions of water droplets and ice crystals, they get joined with each other. Okay, they get assembled with each other because of the very less temperature, because of the freezing temperature in the uppermost atmosphere. These water droplets and ice crystals, ये एक नहीं होता है, ये millions of water droplets and ice crystals, they get joined each other, and when they get joined each other, they form clouds. Okay beta, and these clouds are called as thunder clouds. What are those called as? Thunder clouds. Okay, when अब एक ये clouds क्या होते हैं, when clouds join with each other, okay, they form the bigger clouds. So there is the formation of bigger clouds. I'll repeat the process. Due to the evaporation, the water vapors get risen up in the atmosphere, and in the atmosphere, in the higher altitude of atmosphere, due to the cooling temperature, due to the freezing temperature, these water vapors get changed into the water droplets and even in the ice crystals. Millions of water droplets and ice crystals assemble together and they form clouds फिर से join होते हैं because बहुत ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस क्रिस्टल्स की वजह से क्लाउड्स फॉर्मेशन होती है। क्लाउड्स में बिगर क्लाउड्स गेट कन्वर्टेड इनटू बिगर क्लाउड्स। आर यू गेटिंग मी? अब क्या होता है, ये जो बिगर क्लाउड्स होते हैं बेटा, दीज क्लाउड्स सपोज दिस इज वन ऑफ द क्लाउड। ओके बेटा, these clouds get collided with each other. आपको पता है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, when they collide each other, we can say they rub with each other. When these clouds rub with each other, they get charged. आपको पता है, when the two objects get rubbed with each other, the object gets charged. There is the transference of electrons from one body to another body. As a result of it, the body gets charged. आपने नहीं देखा है कि when this glass rod is this rubbed with the slick, there is the transference of electrons from the glass rod. When they are rubbed with the slick, that means there is a charge producing. There is a production of the charge by rubbing. Here also there is the charge production. There is a production of charge produce होता है with the help of the rubbing of the clouds. अब क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊंगा. As a result of the friction that is produced between the two clouds, there is the प्रोडक्शन ऑफ चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव टाइप का होता है और नेगेटिव टाइप का होता है. सपोज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक क्लाउड ऐसे, इट्स अ क्लाउड दैट इज हॉवरिंग ओवर द स्काई. ओके बेटा, एंड दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ. यहाँ पे क्या होता है, अब चार्ज प्रोड्यूस हुआ है. चार्ज कैसे प्रोड्यूस हुआ है मैं आपको बताऊं. चार्ज ऐसे प्रोड्यूस होता है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो है दैट गेट्स असेंबल्ड एट द टॉप ऑफ द क्लाउड. इट्स अ क्लाउड नाउ, एंड positive charge gets developed over the top of the cloud. As a result of it, the negative charge gets developed to the below portion of the cloud.
clouds. Okay, so upper portion has the density of positive charge, and the lower portion has the density of what? नेगेटिव चार्ज. ओके बेटा, सो मैं आपको बताऊं ये नेगेटिव चार्ज क्यों हुआ यहाँ पे प्रोड्यूस एट द लोअर पोर्शन, एंड पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ प्रोड्यूस एट द अपर पोर्शन. व्हाई नॉट नेगेटिव चार्ज गेट्स डेवलप्ड ओवर द टॉप ऑफ द क्लाउड. ओके बेटा, सो अब देखो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ गई, हाई एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज गेट्स डेवलप्ड ओवर दिस बॉटम सरफेस ऑफ द क्लाउड. उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मीन्स देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट नेगेटिव चार्ज. सो दिस नेगेटिव चार्ज विल रिजल्ट. अब क्या होगा इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज देयर इज द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, देयर हैपन्स टू बी द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन. अब मैं आपको इंडक्शन बताऊं क्या इंडक्शन होता क्या है. इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अर्थ ये जो अर्थ है, अर्थ के टॉप सरफेस पे क्या होगा, इसका जो अपोजिट वाला नेचर चार्ज होगा, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज, दैट विल गेट डेवलप्ड ओवर दिस सरफेस. ओके, बिकॉज इट विल अट्रैक्ट, इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट द नेगेटिव नेचर. पॉजिटिव नेचर, दिस इलेक्ट्रॉन विल अट्रैक्ट इट्स नेगेटिव नेचर. अब देखो इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज का है, सो इट विल अट्रैक्ट इट्स नेगेटिव बिहेवियर, इट विल अट्रैक्ट इट्स अपोजिट बिहेवियर. सॉरी, अपोजिट बिहेवियर कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज. एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप होगा एट द टॉप ऑफ द अर्थ, एट द टॉप सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके बेटा, बिकॉज आपको पता है चार्ज की एक प्रॉपर्टी है, लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट. इट विल अट्रैक्ट इट्स एंटीबॉडी, इसके एंटीबॉडी कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज. ओके बेटा, अब देखो यहाँ पे बीच में क्लाउड और यहाँ पे अर्थ भी, क्लाउड्स एंड अर्थ के बीच में यहाँ पे एयर. अब देखो सर, ये जो नेगेटिव चार्ज है इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ इट्स. ओके, इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड. अब यहाँ पे प्रोड्यूस होगा पॉजिटिव साइड, बिकॉज अर्थ जो है इट इज कॉल्ड एज द सिंक ऑफ चार्जेस. इट इज़ अ ह्यूज सिंक फॉर चार्जेस, ह्यूज सिंक्स फॉर चार्जेस, मतलब वो इट विल चार्ज जो होगा, जो फ्लो, वो एट लास्ट फ्लो करता है किस में, अर्थ में, एंड अर्थ एब्जॉर्ब्स दोज चार्जेस. दैट्स व्हाई अर्थ इज कॉल्ड एज ह्यूज सिंक फॉर चार्जेस. अब देखो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इस अर्थ के सब सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं, प्रोसेस ऑफ इंडक्शन. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ इंडक्शन. मैं आपको बताऊं ये प्रोसेस ऑफ इंडक्शन पहले होता क्या है. देखो, प्रोसेस ऑफ इंडक्शन की वजह से कोई न्यूट्रल बॉडी चार्ज में आती है. कोई न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, चार्ज, इट क्रिएट्स ए चार्ज, इट प्रोड्यूसेस ए चार्ज. मैं आपको बताऊं कैसे. सपोज अगर मैं कॉम की बात करूंगा, कॉम को मैंने क्या किया, कॉम को मैंने रब किया, कॉम को मैंने रब किया विद द हेयर, कॉम गेट्स चार्ज. सपोज कॉम में क्या हुआ, कॉम में प्रोड्यूस हुआ पॉजिटिव चार्ज, कॉम में प्रोड्यूस हुआ पॉजिटिव चार्ज. ओके, सपोज मैं कॉम की बात कर रहा हूँ, कॉम में क्या हुआ, कॉम में प्रोड्यूस हुआ पॉजिटिव चार्ज. ये समझ लेना आपको चार्ज पे इंडक्शन होता क्या है. अब अब देखो इट्स पॉजिटिव चार्ज, एज कॉम इज एन इंसुलेटर, कॉम इज एन इंसुलेटर, देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. यहाँ पे चार्ज सपोज पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, वो वही के वही रहेगा. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज स्टैटिक चार्ज. चार्ज विल बी एट रेस्ट, चार्ज वही का वही पे प्रोड्यूस होगा. अब देखो इस पॉजिटिव चार्ज, अब आपको पता है आफ्टर रबिंग द कॉम विद द हेयर इट अट्रैक्ट्स द पीसेस ऑफ पेपर. मैंने पेपर्स को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लिया कॉम से, ये अट्रैक्ट करेगा किसको, पेपर को. पेपर क्या है अभी, पेपर अभी न्यूट्रल है. आर यू गेटिंग मी. पेपर क्या है, पेपर न्यूट्रल है. सपोज पीस ऑफ पेपर मैंने लिया, पीस ऑफ पेपर, पेपर इज मेड ऑफ द एटम्स, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे. इस पॉजिटिव चार्ज की हाई डेंसिटी की वजह से इस पेपर में क्या हुआ, देयर विल बी द अलाइनमेंट ऑफ चार्ज. इट विल अट्रैक्ट द opposite behavior of charge, that will be the negative will be developed like this. Okay beta, and positive charge will be developed like this, because positive and positive will repel each other, and negative को क्या करे, ये attract करेगा negative को, and paper will be attracted towards this comb, because this process is called as induction. This process is called as, so there happens to be the production of the charge at force of attraction,
ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज, यही नेगेटिव चार्ज, बिकॉज यहाँ पे डेंसिटी हाई, देयर इज द हाई एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, देयर इज द हाई एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब क्वेश्चन है सर पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं है? पॉजिटिव चार्ज नहीं करता है बेटा फ्लो, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है। ओके, ओनली वन चार्ज गेट्स फ्लो, दैट इज द नेगेटिव चार्ज। देयर इज द ट्रांसफरेंस ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स आपको ट्रांसफ़र नहीं होंगे, बिकॉज प्रोटॉन्स कहाँ पे होते हैं? प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं, उनका एक स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन्स का जो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन जल्दी रिमूव हो जाता है, प्रोटॉन नहीं होता है, बिकॉज प्रोटॉन गेट्स, प्रोटॉन कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होता है, और उसका जो प्रोटॉन वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स दैट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से प्रोटॉन मूव नहीं करता है। अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज मूव करेगा, दैट इज वाई नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड एट द बॉटम ऑफ द क्लाउड। अब नेगेटिव चार्ज मतलब क्या गो, नेगेटिव चार्ज मतलब गो गोबर, इलेक्ट्रॉन्स विल बी रश्ड टूवर्ड्स दिस, इलेक्ट्रॉन्स विल बी रश टूवर्ड्स लाइक दिस। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आपको एक फिर स्पार्क दिखती है, स्पार्क दिखती है, द व्हाट इज दैट, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेट्स रश्ड, इलेक्ट्रॉन गेट्स रश्ड। ओके बेटा, इलेक्ट्रॉन इज द, इलेक्ट्रॉन गेट्स फ्लोन, बिकॉज आपको पता है पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, इलेक्ट्रॉन गेट्स फ्लोन फ्रॉम द बॉटम surface of the cloud to the earth, and this process, the phenomena when negative charge from the cloud comes in contact with the positive charge on the ground, or a huge amount of energy is produced, a huge amount of energies, I will repeat this, the phenomena, yahi phenomena, the process, the phenomena, I will write this, the phenomena, the phenomenon when negative charge, when negative charge from the cloud comes in contact, comes in contact with the positive charge, with the positive charge on the ground, on the ground, comma, a huge amount of, a huge amount of energy, अब क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, a huge amount of energy is produced in the form of, in the form of light and sound, light and sound, called as lightning, called as, इसी को हम क्या कहते हैं, lightning, यहाँ पे मैं लिखता हूँ called as lightning. So what does this, अब this process, जिससे हम, जिससे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जिससे क्या होता है, प्रोड्यूस होती है, जिससे प्रोड्यूस होती है क्या, साउंड एंड लाइट बाय क्लाउड्स, बाय क्लाउड्स। अब व्हाट इज द फिनोमिना, देयर इज द, there is the transference of this negative charge, when negative charge gets in contact with the positive charge, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, अर्थ में प्रोड्यूस हुआ, अर्थ के सरफेस पे प्रोड्यूस हुआ, वो कैसे प्रोड्यूस हुआ, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा इसके अपोजिट एंटीबॉडी का, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। एंड वही फिनोमिना वेर इन द नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द क्लाउड कम्स इन कंटैक्ट विद द पॉजिटिव चार्ज इन द ग्राउंड, उसमें क्या हुआ, ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट्स प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड साउंड, एंड दैट वी से इट्स कॉल्ड एज लाइटनिंग। अब देखो ये आप स्पार्क जो देखते हो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेट्स रश्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्लाउड टू द टॉप ऑफ द अर्थ, टू द टॉप ऑफ द अर्थ, एंड इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं। अब क्वेश्चन है सर, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे, यहाँ पे जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ एंड पॉजिटिव चार्ज फ्लो करे, नेगेटिव चार्ज फ्लो किया फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्लाउड, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्लाउड एंड टू द positive, that means to the positive charge that is residing on the top of the earth, यहाँ पे तो बीच में एयर है, एयर इज नॉन कंडक्टिंग, air is non-conducting, where from the electrons gets rushed from this point to the this point, although air is non-conducting, air में प्रोड्यूस ही नहीं होता, air is a bad conductor of electricity। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली रीज़न क्या है यहाँ पे, हाउ इट ब्रेक्स द इंसुलेशन ऑफ एयर, because this force of attraction between negative and positive is so much high,
so much heavy that it easily dominates the insulation of air. It easily breaks the domination of air, because यहाँ पे accumulation of negative charge and the attraction of negative charge and positive charge is so much that it easily breaks the insulation of air. It easily breaks the insulation of air. So what is now lightning? It's simply the phenomena when negative charge from the cloud comes in contact with the positive charge on the ground. As a result of it, a huge amount of energy is getting produced in the form of light and sound, which we say as lightning. Okay, beta. And this process of producing light and sound by clouds is simply called as इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. ओके बेटा. सो जो मैंने आपको कहा था, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी कहा कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इट्स एज अ रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज? इट्स द रिजल्ट, इट्स द फॉर्मेशन, इट्स द process of producing light and sound by the clouds. वो कैसे produce होते हैं? When negative charge gets rushed to the positive charge, and in that case a huge amount of energy gets released in the form of light and sound, which is called as lightning, and the process of producing light and sound is called as electric discharge. And ये उसने कैसे बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कि lightning is as a result of electric discharge? उसने एक famous experiment किया था, that is called as kite flying experiment, जिसकी वजह से उसने कहा कि it's just because of this electric discharge that lightning takes place. Okay, this was all about the concept of lightning.